بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تعسر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا سورہ ہے سورہ تین۔ تین کا کیا مطلب ہے؟ انجیر۔ انجیر کو کہا جاتا ہے تین۔ والتینی والزیتون، واو زبر وا جو ہے یہ کیا ہے؟ قسمیہ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو قسمیہ۔ جب کسی چیز کی عربی میں قسم کھانی ہوتی ہے تو اس کو واو لگا دیتے ہیں۔ جیسے کہ اب دیکھتے ہیں آپ کے جو سعودیز ہوتے ہیں بات کرتے ہیں واللہ بولتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی قسم۔ تو جو واو ہوتا ہے واو زبر وا، تو اس کو کیا؟ واو قسمیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر والتین قسم کھائی جا رہی ہے کس کی؟ انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی بھی۔ یہاں پر بھی ایک واو زبر وا ہے، ایک قسمیہ واو ہے، اور واو قسمیہ زیتون کے پہلے بھی ہے، یعنی کہ انجیر اور زیتون کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر جو انجیر اور زیتون کے درخت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ دو پھل ایسے ہیں جو بہت زیادہ ویلیویبل ہے، یعنی کہ انجیر جو ہے غذائیت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، بہت ساری بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ اور یہاں پر اس کو آگے ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں پھلوں کی اہمیت اور کیا وجہ سے بتائی جا رہی ہے، کیوں ان دونوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیوں اس بات کی قسم کھا کر ہمیں آگے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب جب یہ دیکھیں کہ جب ہم کوئی بات کی قسم کھاتے ہیں تو کوئی اہمیت والی جب بات ہوتی ہے اس پر ہی ہم قسم کھاتے ہیں، ایسی کوئی عام باتوں پر ہم قسمیں نہیں کھانے بیٹھ جاتے کہ چھوٹی موٹی گھر کی روزمرہ کی باتیں ہوں گی اگر تو ہم نہیں قسم کھائیں گے۔ قسم ہم کب کھائیں گے؟ جب کوئی اہمیت والی بات ہمیں بتانی ہوگی، تب ہی صرف ہم قسم کھائیں گے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی۔ اب یہاں پر تین چیزوں کی قسمیں ہو گئی، زیتون کی، انجیر کی اور طور سینا کی۔ اور آگے کی ایک قسم کیا ہے؟ وہذا البلد الامین۔ کون سا بلد الامین کس کو کہا جاتا ہے؟ مکے کو۔ اس پرامن شہر، یعنی کہ پرامن شہر کی طرف، مطلب کس کی طرف اشارہ ہے؟ مکے کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں پر زیتون جو ہے، زیتون، اب انجیر کے تو بارے میں ہمیں پتا چلا کہ بہت زیادہ ویلیویبل پھل ہے، خوش ذائقہ ہے، اس کا مطلب ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے، بہت ساری بیماریوں کا بھی علاج ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں کھانے سے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ زیتون جو ہے ایک درخت ہے جس سے زیتون کا تیل بھی نکالا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ زیتون کے تیل کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے بہت فائدے ہیں، زیتون کے بھی فائدے ہیں، زیتون کے تیل کے بھی فائدے ہیں۔ سورہ نور میں بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کی قسم کھائی گئی ہے زیتون کی۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو دو پھل ہیں تو ان کی اہمیت کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ وہ علاقے شام اور فلسطین کا علاقہ ہے جہاں پر یہ اگتے ہیں۔ اس سرزمین کی قسم نہیں کھائی گئی بلکہ ان پھلوں کی قسم کھائی گئی۔ ان پھلوں کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ وہاں پر اگے ہیں، شام اور فلسطین میں اگے ہیں۔ تو اہل عرب کا کیا فائدہ تھا کہ وہ کسی چیز کو بولنے کے لیے اس کی جو اصل مراد ہے اس سے مراد دیتے تھے، یعنی کہ وہاں پر اب یہ شام اور فلسطین کی اہمیت ان کے نزدیک کیوں تھی؟ کیونکہ سارے انبیاء وہیں پر آئے، وہاں پر سارے انبیاء وہیں پر پیدا بھی ہوئے، وہیں پر ان کا مسکن بھی رہا۔ تو یہ جو سرزمینیں ہیں بہت ہی اہمیت والی سرزمین تھی عرب کے نزدیک، تو اس لیے انہوں نے یہاں کے دو پھل جو ہے اس کو بھی بہت زیادہ اہمیت والا جانا، زیتون کو بھی اور انجیر کو بھی۔ تو یہاں پر اس وجہ سے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے کیونکہ وہ یہاں پر پیدا ہوئے، شام اور فلسطین میں پیدا ہوئے۔ اور جو حاضر البلد الامین جو ہے اور طور سینین جو ہے، طور سینین کیا ہے کہ یہ آج بھی طور سینا کہا جاتا ہے اس کو بھی، کہ ہم سورہ مومنون میں بھی دیکھیں گے آگے کہ اس کو نام طور سینا ہے۔ اور یہ ایک بلند پہاڑ ہے جو مصر سے مدین میں جاتے وقت راستے میں آتا ہے، یعنی کہ مصر سے جب یہ سٹوری ہم دیکھیں گے آگے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے جا رہے تھے مدین سے مصر جا رہے تھے وہ، تو ان کو راستے میں وہ طور سینا پہاڑ
मिला था और जहाँ पर अल्लाह ताला ने उनसे बातचीत की थी। ये स्टोरी हो सकता है कि बहुत सारी बहनों को हमारे यहाँ बैठी हुई पता है, क्योंकि सारी बहनें दीन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह जब आएगा तो हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो ये कौन सा पहाड़ है? वो वाला पहाड़ है तूर सीना जिसको कहा जाता है। तो ये एक पहाड़ की एक चोटी का नाम तूर है, और इस पहाड़ की दामन में जो वादी है उसका नाम तुआ है, वादी तुआ। तो ये भी वादी तुआ जो है, जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आवाज दी थी वादी तुआ में। तो ये कैसा है कि एक मुकद्दस जगह है, वादी मुकद्दस है ये। इस मुकाम पर मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत भी अता की गई थी, और अल्लाह ताला से हम कलामी का भी मूसा अलैहिस्सलाम को शर्फ हासिल हुआ था। तो ये इसलिए तूर सीनीन जो है ये भी अहमियत वाली जगह है। तो यहाँ पर अहमियत वाली जो जगहें हैं उनकी कसमें खाई गई। और फिर जो आगे आ रहा है वहादल बलदिल अमीन, बलद किसको कहते हैं? शहर को। और अमीन अमानतदार, पुरअमन भी है, अमानतदार, यानी कि इसके दो मीनिंग निकलते हैं। यहाँ पर इसकी क्या मीनिंग निकल रहे हैं? पुरअमन शहर, जो कि मक्का मुअज़्ज़मा है, जहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर दोबारा खाने काबा तामीर किया था। तूफान नूह में ये टूट गया था ना काबा, तो फिर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर दोबारा खाने काबा की तामीर की, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी जिंदगी यहीं पर बसर की। और यहाँ पर अपने आखिरी जो नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी वहीं पैदा हुए और आपको नबूवत भी वहीं हासिल हुई। फिर नबूवत के बाद 13 साल आपने यहीं गुजारे। इस मुकाम के लिए सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी कि अल्लाह ताला इस शहर को अमन वाला और मोहतरम बना दे, यानी कि इज्जत वाला और अमन वाला बना दे। तो आज देखिए कि कितनी उसकी इज्जत है, लोग दूर दूर से पैसे खर्च कर करके वहां आते हैं उम्रा करने के लिए। और बिल्कुल कैसा शहर है? बिल्कुल आराम से, कोई लूट खसोट नहीं होती, कत्ल गारत गिरी नहीं होती। पहले के जमाने में कैसा था कि अरब में हर जगह लूट मार हुआ करती थी, लेकिन बाद में सिर्फ यही जगह ऐसी थी कि जहां पर लोगों को अमन मैसर आता था। और मक्के की हुर्मत आज तक कायम है और आइंदा भी कायम रहेगी। यहाँ पर लोग अमन व अमान से रहते हैं, आते हैं, रहते हैं, इबादतें करते हैं। तो इसकी अहमियत इस वजह से भी है क्योंकि ये अमन वाला शहर है। और ये इसको दुआ है, इसके लिए दुआ की थी उन्होंने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, कि इसको अमन वाला शहर बना दे। तो वो अमन वाला शहर बन गया था, और इसी वजह से यहाँ पर सारे लोग आते भी हैं, अपने आराम से रहते हैं, लूट मार नहीं होती, लड़ाई झगड़े नहीं होते, कत्ल व गारत गिरी नहीं होती, किसी की कोई चीज चोरी नहीं होती। लेकिन अब यह है कि सारी की सारी चीजें इस वजह से इनकी खस्में खाई गई। 4 चीजों की यहाँ पर खस्में खाई गई, 3 की, एक तो अंजीर की, एक जैतून की, और एक तूर सीना की, और जो पुरअमन शहर है यानी कि मक्का की। ये 4 खस्में खाकर अल्लाह ताला फिर आगे कह रहे हैं जो अहम बात है, जिसकी तरफ अल्लाह ताला हमें बुला रहे हैं, मतलब इशारा जिसकी तरफ है, अहम बात जो बताना चाह रहे हैं अल्लाह ताला। तो उसकी बात अब आ रही है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, कि बेशक, लक़द का क्या मतलब है? यकीनन, खलक़ना, हमने पैदा किया, इंसान को, फी अहसनी तक़वीम, अहसन किसको कहते हैं? बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, तक़वीम शक्ल व सूरत, यानी कि बेहतरीन शक्ल व सूरत में हमने इंसान को पैदा किया। अब ये अल्लाह ताला एक हम पर एक एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमको एक अहसन तक़वीम में पैदा किया, एक ऐसी तख्लीक की कि बिल्कुल उसमें कोई अजीब व गरीब बात नहीं है, कि बिल्कुल ऐसी डरावनी शक्ल व सूरत हमारी नहीं बनाई। अब आप देखिए कि जो हम पता नहीं क्रिएचर्स में क्या क्या होता होगा, जिन और भूतों की जो आजकल लोगों के दिमागों में बने हुए हैं पिक्चर्स, तो वो कैसे कैसे उनके फेसेस होते हैं, कैसे कैसे उनके फीचर्स होते हैं, कि इंसान को डर लगने लगता है कि किसी की आंख बीच में है, तो किसी की नाक लंबी है, तो किसी के होंठ लटके हुए हैं। तो ये कैसे है? एकदम ऐसी है कि डरावनी शक्लें हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने इंसान को क्या किया? ऐसी अहसनुल तक़वीम में पैदा किया, बेहतरीन साख्त में पैदा किया। तो हमको क्या है कि इसका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला में अपनी एहसान गिनवा रहा है। सबसे पहला एहसान ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अच्छी शक्ल सूरत में पैदा किया। इससे पहले हमारी कई बार इस बात पर डिस्कशन हो चुकी है कि अल्लाह ताला ने हमें एक जानवर नहीं बनाया। एक अब देखिए कि एनिमल्स को देखिए कि उनके 4 पैर होते हैं,
اور وہ اس طریقے سے ان کے عجیب و غریب شکلیں ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ اب کوئی ڈاگ کوئی لے لیجیے آپ، یا پھر کسی کو ایسے ہی کوئی لے لیجیے، کوئی اینیمل لے لیجیے، شیر لے لیجیے یا پھر ایلیفینٹ لے لیجیے، کتنی عجیب و غریب شکلیں ان کی ہیں۔ اب دیکھیے کہ انسان کوئی لے لیجیے، کوئی بھی انسان کو لے لیجیے، کہ کسی انسان کو دیکھ کر آپ کا ایسا ڈر نہیں لگتا کہ یہ انسان ہے اور اسے ڈرنا چاہیے، کہ ہر انسان کی شکل بھلے ہی کوئی خوبصورت ہے، بھلے کوئی کم خوبصورت ہے، تو لیکن کیسا ہے ان کی شکل و صورت ایسی ہے کہ وہ احسن تقویم میں شامل ہے، کہ برابر اللہ تعالیٰ نے بیلنس کے لیے دو آنکھیں برابر، ایسے کہ جیسے ناپ کے جیسے کوئی چیز بنائی جاتی ہے اسکیل سے ناپ کر یا پھر کسی چیز سے ناپ کر، اس طریقے سے برابر دو آنکھیں جگہ پر لگائی ہوئی ہے، دو کان جگہ پر لگائے ہوئے ہیں، پھر اس کے بیچ میں ناک بھی اتنے سسٹمیٹک طریقے سے لگائی ہوئی ہے کہ جیسے اگر ہماری ناک یہاں کی بجائے پیشانی پر ہوتی تو بڑے عجیب و غریب ہمارا دکھتا چہرہ، یا ہماری ناک تھوڑی پر لٹکی ہوئی ہوتی۔ امیجن کیجئے بس ہماری چہرے کو تھوڑا سا ادھر ادھر، ہماری جو چیزیں ہیں چہرے پہ لگی ہوئی نا، اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے دیکھیے کہ کتنا ہم عجیب و غریب لگتے اور کتنا لوگ ڈرانے لگتے، اس طریقے سے ان کے چہرے خوبصورت لگنے کے بجائے بدصورت لگنے لگتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ پھر اس میں دیکھیے کہ ایک الگ الگ پور میں اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں بنائی، انگلیوں میں دیکھیے کہ کتنی ہڈیاں بنائی کہ ہم ہر طریقے سے فلیکسیبلی اپنے ہاتھ کو موڑ سکتے ہیں، کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں، کسی چیز کو کھانے کے لیے ہم کو کبھی دو انگلیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ 5 انگلیوں میں سے اگر صرف انگوٹھا ہی کسی کو نہ رہے تو وہ انسان کتنا مجبور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا اس کو بھی کبھی غور کیجیے، اپنے ہاتھ کو دیکھیے، ہاتھ کی طرف دیکھیے اور غور کیجیے کہ 4 انگلیاں ایسے لائن میں بنی ہوئی ہیں، اس کے پھر سامنے تھوڑی جگہ چھوڑ کر پھر ایک انگوٹھا لگایا ہوا ہے، تو وہ کیسے ہمارے کام آتا ہے؟ ہم اس سے نوالا بنا سکتے ہیں، کوئی چیز کو مار توڑ کے کچھ چیز کو ہمیں توڑنا ہے تو اس کو ہم مضبوطی سے گرفت کو اس کو ہم پکڑ سکتے ہیں، کوئی چیز کو طاقت والی چیز اٹھانا ہے تو ہم اس سے اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے باڈی کے ہر پارٹ کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہر چیز بڑے ہی سسٹمیٹک نفاست سے اللہ تعالیٰ نے بنائی انسان کی، لیکن انسان کے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے کہ وہ اپنے چہرے پر نظر ڈالے کہ یہ کیسے بنائے۔ آج کل تو بس یہ ہے کہ اتنی اچھی چیزیں بننے کے باوجود بھی کیا ہے، خواتین نیو جو ماڈرن ہے وہ کہاں سے کہاں پارلروں کے چکر کاٹ رہی ہیں اور اپنی آنکھوں کو چینج کر رہی ہیں، اپنی ناک کو چینج کر رہی ہیں، فلرز کر کے لپس کو چینج کیا جا رہا ہے، لپس کو موٹے کیا جا رہا ہے، اور کیا پتہ نہیں ناک کو چینج کیا جا رہا ہے، ناک کو بڑی کیا جا رہا ہے، آپریشن سرجری اور جری پتہ نہیں کیا کیا کر کے، اور آنکھوں کو بھی کیسے کھینچ کے اس کو کیسے لمبی کی جا رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس طریقے سے باڈی کے ہر پارٹ میں چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے۔ اگر تو ہاں بڑے بڑے ملکوں میں یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ چھوٹے ملکوں میں یہ بات کا پتہ ہی نہ ہو، ہمارے جیسے عام لوگوں کو تو یہ ساری چیزیں پتہ ہی نہ ہو کہ دنیا میں یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں نے اس میں نکال لیا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے جو بنایا ہمیں وہ ساری چیزیں پسند نہیں، ہم اپنے آپ کو خود بنا لیں گے۔ یہ بات ہو گئی نا کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا اچھا نہیں ہے، اب ہم اس کو اچھے سے بنائیں گے۔ تو دیکھ رہے ہیں لوگ اس کے کتنے پریشانیاں، کتنے سائیڈ ایفیکٹ اٹھا رہے ہیں۔ کسی نے ناک کی سرجری کرائی، ان کو کینسر ہو گیا، وہ ناک سڑ گئی، اور پھر ناک سڑ کے پھر وہ کینسر ہو کے پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، اور فلر کرنے سے ہونٹ ایسے ہونٹوں میں کچھ سڑ گیا، وہ اس طریقے سے کچھ ہو گیا۔ اس طریقے کی چیزیں بہت سامنے بھی آ رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کی ایسی ایسی ڈیزیز اس وجہ سے جو ہو رہی ہیں، سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو لیکن ہم کیا ہے، ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ ساری چیزوں تک ہم ابھی نہیں پہنچے ہیں۔ بہت زیادہ جو بڑے بڑے جو اسٹیٹس کانشیس لوگ ہیں، جو بہت ہی ماڈرن ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بس شو پیس بنا کر گھومتے ہیں، شو آف کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ جو فلموں کے ہیروئنس ہیں، یہ وہ سب شاید یہ ساری چیزیں کرتے ہوں گے، لیکن ہمارے الحمدللہ کہ ہمارے مڈل کلاس گھروں میں یہ ساری چیزیں ابھی نہیں پائی جاتی۔ یہ ہمارا ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس ہم مڈل کلاس ہیں، الحمدللہ اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ ہم مڈل کلاس ہیں۔ اچھا ہے کہ ہم اتنے ہائی کلاس نہیں ہیں کہ ہمیں اگر ہم ایسے اسٹیٹس والے لوگوں میں بیٹھتے تو پتہ نہیں ہمیں بھی کیا کیا کرنا پڑتا۔ اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں سے بچایا، ایسی محفلوں سے بچایا، ایسے دوستوں سے بچایا جو یہ سارے گناہ کے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب خود ہی کہہ دیا کہ قسمیں کھا کھا کے کہہ دی کہ میں نے تمہیں بہترین شکل و صورت میں بنایا،
تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے یہ سب چیزیں کرنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، نہ ہمیں آئی بروز بنانے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری خواتین آئی بروز بناتی ہیں اور پھر ان کے پیچھے بہانہ یہ لگاتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ کے لیے ہم بنا رہے ہیں۔ ہسبینڈ کے لیے ہم وہ کام کیوں کریں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے؟ یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کیا ہے، اور ہسبینڈ کی پسند اور اللہ کی پسند، کس کی پسند کو اہمیت دیں گے ہم؟ تو یہ ساری چیزیں ہماری بہت زیادہ غور و فکر کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنی پیاری شکل و صورت میں بنایا، اب آپ اپنی شکل کو یہ نہ سمجھے کہ دوسرے خوبصورت ہیں، میں خوبصورت نہیں ہوں۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر انسان ہی خوبصورت ہو، ہر انسان ہی گورا ہو، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کوالٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھی کہ کئی لوگوں میں ایسی کوالٹیز رکھی ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے وہ ان سارے لوگوں پر بھاری ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی جو ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہوتی لیکن ان کے حس اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ حافظ ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بولنا نہیں آتا لیکن وہ پڑھائی میں انہوں نے کیا ڈگریاں حاصل کر لی، انہوں نے لکھ کر، اور پتہ نہیں کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سینس دیا ہوا ہے دوسروں لوگوں سے زیادہ کہ وہ اپنے آپ کو وہ پیچھے نہیں رکھتے۔ کئی میری ایسے جاننے والی بہنیں ہیں کہ جن کے جو بول نہیں پاتی لیکن انہوں نے ایسی ڈگریاں لے کر رکھی ہیں کہ جو ہمارے بولنے والے بچے جو ہے اور جو پڑھنے والے اور جو آنکھیں رکھنے والے اور دماغ رکھنے والے بچے جو ہے وہ ان سے پیچھے ہیں۔ تو ہمارے دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیچھے نہیں رکھا۔ اگر کسی کو شکل و صورت میں کم بنایا تو اس کے پاس ڈگریاں ہیں، اس کے پاس علم دین ہے، اس کے پاس ایسی کوالٹیز ہے کہ لوگ اس کی ویلیو کرنے لگے۔ بس ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے اندر کی جو چیزیں ہیں اس کو ڈھونڈیں اور باہر نکالیں۔ ایسے نہ سوچیں کہ ہم کوئی چیز میں کم ہے، کوئی اگر کم قد والا ہے تو وہ کبھی یہ سوچ کر ڈپریس نہ ہو کہ ہائے میرا قد اتنا کم ہے۔ کوئی رنگ میں کم ہے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ ہائے اللہ تعالیٰ نے مجھے تو کالا کیوں بنایا، سب لوگ اتنے گورے ہیں۔ ڈپریس نہ ہو۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچ کر نا شیطان ہمارے دماغوں میں یہ ساری باتیں ڈالتا ہے کہ دیکھو تم تو کم قد والی ہو، تم تو زیادہ قد والی ہو، تو تمہارا تو رنگ کالا ہے۔ تو اس طریقے سے شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان اپنے اللہ کا ناشکرا ہو جائے۔ لیکن ہمیں یہ ساری چیزوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتا نہیں بنایا، بلی نہیں بنایا، ایلیفینٹ نہیں بنا دیا، جنگلی جانور نہیں بنا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جنگلی جانور بنا دیتا تو ہماری کیا ہی زندگی ہوتی؟ ہم جنگل میں مارے پھر رہے ہوتے ہیں، ایک ٹائم کے کھانے کے لیے بھی ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، پانی پینے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہم کو انسان بنایا اور احسن التقویم یعنی کہ سارے جو مخلوقات ہیں سب سے اونچا درجہ عطا کیا، اور فرشتوں کو بھی اس آدم کو سجدہ کروایا۔ یعنی کہ دیکھیے کہ جنت انسانوں کے لیے تو جنت ہے، فرشتوں کے لیے تو جنت بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی انسانوں کے لیے کتنی اہمیت والی چیز ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے سارے جاندار دوسرے جانداروں پر بھی فضیلت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے ادنا یعنی کہ نیچے والی نچلی ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا۔ یعنی کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اتنی صلاحیتیں دینے کے باوجود، اتنی قوتیں اور صلاحیتیں دینے کے باوجود اس کا استعمال نہیں کرتے، اور کیا کرتے ہیں اپنی جو اتنے زیادہ حد سے زیادہ گر جاتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ جانوروں کی طرح یعنی کہ دوسرے جانداروں تک حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ انسان تمام مخلوق سے پست کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جو جسمانی قوتیں ہیں، جسمانی ذہنی صلاحیتیں ہیں اس کو استعمال نہ کرے اور برائی کے راستے میں استعمال کرے اس کو۔ اب یہ دیکھیں کہ کوئی اگر بہت زیادہ کلیور ہے اور جس کا بہت دماغ تیز ہے لیکن وہ اپنا دماغ نہ قرآن میں لگائے نہ پڑھائی میں لگائے بلکہ 2 نمبر کاموں میں لگائے، اللیگل کاموں میں لگائے کہ میں اسے چوری کر سکتا ہوں، میں اس کو ایسے پیسے کما سکتا ہوں، میں راتوں رات ایسے امیر بن سکتا ہوں، میں اگر اس کا قتل کر دوں تو یہ مجھے اتنا پیسہ ملے گا۔ یہ مطلب یہ کیسی ہے کہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو انسان برے راستوں میں استعمال کر رہا ہے۔ آج کل تو کیا کیا ہو رہا ہے، ہیکنگ ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیسے کیسے طریقوں سے لوگوں کے بینکس لوٹے جا رہے ہیں فون کے ذریعے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے نئے طریقوں کے ذریعے بینکس لوٹے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو طریقے ان لوگوں نے اپنائے ہیں، ہمارا تو دماغ بھی کام نہیں کرتا کہ اس طریقے سے وہ کیسے کیسے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذہنی صلاحیت دی تھی تو انہوں نے اس کا کہاں استعمال کیا؟
गलत जगहों पे इस्तेमाल किया, गुनाह कमाने के लिए उसका इस्तेमाल किया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की और बगावत उतर आए, तो इंसानों ने क्या, इंसान हैवानों की सतह से भी नीचे गिर गया। फिर अब क्या है कि हैवान ही हो गया ना, ये तो इंसान एक तरीके से, कि इंसान, भाई इंसान जब पता चलेगा कि ये इंसान है, उसमें इंसानियत होगी। अगर इंसान इंसानियत ना करके हैवानियत पर उतर जाए, लोगों की उसको परवाह ना रहे कि किसका क्या नुकसान हो रहा है मेरी वजह से, क्या लोगों के घरों में परेशानियां आ सकती हैं मेरी तकलीफ इस वजह, जो मैं अगर ऐसी हरकत करूंगा, गैर शरई हरकत भी कह सकते हैं उसको, या ऐसे जराइम पेशा हरकत भी कह सकते हैं उसको, कि अगर ये मैं हरकतें करूंगा तो पता नहीं सामने वालों का क्या होगा, उनके घर में जो इन्होंने इतनी मुश्किलों से हलाल तरीके से मेहनतों से उन्होंने पैसा कमाया हुआ है, तो वो उनके पास ऊपर क्या बीतेगी, ये वो नहीं सोचते। बल्कि वो क्या करते हैं, बस वो ये सोचते हैं कि हमारा फायदा किस तरीके से हो। तो फिर इंसान तो हैवान बन गया ना फिर। इस तरीके से उसको अगर किसी का दिल में दर्द नहीं है, उसके दूसरे इंसान का दर्द नहीं है, उसको किसी के फिक्र नहीं है, किसी का ख्याल नहीं है, तो फिर वो तो इंसान से हैवान बन गया। और वो इसी तरीके से हैवानों की अल्लाह ताला ने खैर और शर की तमीज नहीं बख्शी। अब जैसे देखिए कि जो हैवान है, एनिमल्स जो है, तो अल्लाह ताला ने उनको अच्छाई और बुराई की तमीज सिखाई है क्या? नहीं सिखाई। बल्कि इंसान को सिखाई है खैर और शर की तमीज, अच्छाई और बुराई की तमीज। क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये इंसान देख सकता है, समझ सकता है, सोच सकता है। अकल अता की कि इंसान सोचे समझे। लेकिन जानवर क्या है कि ये सारी चीजें नहीं सोच सकता। तो इसमें भी क्या है, अहसन तकवीम बनाया था अल्लाह ताला ने इंसान को, लेकिन इंसान ने क्या किया, उसको इस्तेमाल नहीं किया, और उसने अपने आप को इतनी नीचे गिरा दिया, इतनी पस्ती में चला गया वो, कि असफला साफिलीन हो गया वो। यानी कि नीचों से नीचे चला गया, एकदम नीचे। ऐसे क्या, एकदम नीचे भी, इतना सिर्फ नीचे ही नहीं बल्कि नीचों से भी नीचे गिरा लिया उसने अपने आप को, ऐसी अखलाकी लिहाज से भी, और ऐसी दूसरे बुरे काम, जुल्म, नशेबाजी, कमीनापन, खुद गर्जी, और पता नहीं कत्ल गारत, लूट खसोट, झूठ, चोरी, पता नहीं क्या क्या इंसान के अंदर बुराइयां शामिल हो गई। और फिर इंसान अपने आप को इंसान नहीं बल्कि हैवान बना दिया उसने अपने आप को। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इंसान को अल्लाह ताला ने तो एक आसन तकवीम बनाया था, एक अकल वाला बनाया था, उसको इस बात की समझ बूझ अता की थी कि वो अच्छाई और बुराई की तमीज कर सके। उसको दो रास्ते भी बता दिए थे, जन्नत और दोजख का रास्ता, अच्छाई और बुराई का रास्ता, नेकी और बदी का रास्ता बता दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने आप को क्या किया, गलत रास्तों पर गलत रास्तों पर डाल दिया। और गलत रास्तों पर जाते जाते फिर वो कैसा हो गया, एकदम निचली निचली तरीन मखलूक में चला गया, असफला साफिलीन में चला गया। एकदम नीचों से भी नीचे गिरा दिया अपने आप को उसने, और ये खुद उसने अपने आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। लेकिन आगे फिर क्या आ रहा है, इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहात। अब फिर वही आगे बात कि मगर वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए नेक स्वालिहात, स्वालिह अमल किए, फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। तो ये कैसे लोग हैं, इनके लिए कभी ना खत्म होने वाला अजर है। ऐसा ममनून क्या है, मतलब खता होने वाला, कभी ना खत्म होने वाला अजर है इनके लिए। तो यहाँ पर फिर ऐसे लोगों की बता दी गई कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि जो अपनी नेकियों पर कायम है, अल्लाह से डरते हुए हर काम करते हैं, जो सांस लेते भी हैं तो अल्लाह से डर के सांस लेते हैं, किसी का कोई बुरा नहीं करते, नेकियों पर कायम रहते हैं, गुनाहों से बचते रहते हैं। अब मैंने जैसे इससे पहले भी कहा था कि नेकियों पर कायम रहना फिर भी आसान है, लेकिन गुनाहों से अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है, जबकि इंसान को आदत पड़ चुकी हो कुछ गुनाहों की। अब देखिए कि कुछ गुनाहों की हमें आदत कैसे पड़ जाती है, जैसे कि बेपर्दगी की आदत हो गई, और जेंट्स और लेडीज बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, ये सारी चीजों की आदत हो गई। अब वो बुरा नहीं लग रहा, यानी कि इंसान ये सोचता है कि ये क्या बुरी बात है, इतने सालों से तो हो रही है, हमारे खानदानों में ये चीज चली आ रही है, तो इसमें क्या बुरी बात है। तो इस तरीके से क्या है कि इंसान अपने आप को नीचे दिखा रहा है। और लेकिन वो लोग जो इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन वो लोग सिवाय उन लोगों के, अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल करे जिनका जिक्र इसमें हो रहा है, कि अल्लाह ताला हम भी चाहते हैं कि हम भी ईमान लाए और हम आमिलुस स्वालिहात में शामिल हो जाए, ताकि हमारे लिए भी अजर कैसा हो, कभी ना खत्म होने वाला अजर हो। तो ऐसे लोग हमेशा नेक अमाल बचा लाते हैं, हमेशा अल्लाह की खुशनुदी के काम करते हैं, लोगों को हर्ट नहीं करते हैं,
अपने आस पास। अब आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं, अल्लाह भी उनसे राजी होता है और बंदे भी उनसे राजी होते हैं। ये नहीं है कि एक इंसान दिन भर नमाजें तो पढ़ रहा है लेकिन घर के लोगों से सख्ती से पेश आ रहा है, ताने दे रहा है, इस तरीके से घर के दोस्तों से या रिश्तेदारों से उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो लोग उससे बदजन रहते हैं। लोग सोचते हैं कि ये हमारे सामने ना आए, कहाँ से आ गया ये। लोग उसके आने से तंगी महसूस करते हैं अपने दिलों में कि ये ना आए, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर लोगों के कैसे, ऐसे लोग जो नेक लोग हैं, स्वालिहात जो अमल स्वालेह जो करते हैं, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, हर बार हर जो कदम रखते हैं अल्लाह की रजा के लिए रखते हैं, फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। ये सोचते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, कोई हमसे कोई ऐसा गलत अमल ना हो जाए कि अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। अल्लाह को राजी करने के लिए रात रात भर जागते हैं, तहज्जुदें पढ़ते हैं, रोते हैं, सजदों में गिड़गिड़ाते हैं, और उन्हें दुनिया वालों से कोई लेना देना नहीं होता कि किसी के पास दौलत है, किसी के पास बंगला है, किसी के पास कार है, किसी के बेटे ऐसे हैं, किसी हमारे बेटे ऐसे नहीं हैं। उन्हें कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई लालच नहीं होती, कोई ऐसी नहीं होती कि इनके पास इतना गोल्ड है तो मेरे पास इतना गोल्ड क्यों है। तो ये सारे कैसे होते हैं लोग, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात, स्वालिह अमल करने वाले स्वालिहात जो लोग होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि हर मैदान में वो कामयाब होते हैं। चाहे वो रिश्तेदारों में ले लो, चाहे दोस्त अहबाब में ले लो, चाहे स्कूल के जो सर्कल है उसमें ले लो, फ्रेंड सर्कल में ले लो, चाहे फिर उनकी क्लास में ले लो, चाहे कुरान की कोई ऐसी क्लास हो या कुरान का जो कोई पढ़ना पढ़ाना हो उसमें ले लो, हर चीज में वो आगे दौड़ दौड़ कर जाने वाले होते हैं, फस्तबिकुल खैरात होते हैं, अल्लाह के खास बंदे होते हैं वो। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों में हमें भी शामिल करे, अल्लाह ताला ऐसी क्वालिटीज हमारे अंदर भी शामिल करे कि हम भी ऐसे लोगों में शामिल हो जाए। दुनिया से हमें अल्लाह बेपरवाह कर दे, बेनियाज कर दे अल्लाह ताला। अल्लाह हमको ऐसे लोगों से भी बेनियाज कर दे जिनकी वजह से हम गुनाहों में पड़ते हैं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनकी वजह से हम गुनाहों में पड़ते हैं कि इन्होंने देखो हमारे साथ ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया। कुछ होते हैं 10 में से एक रिश्तेदार हमारे घरों में एक ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम बहुत गुनाह में पड़ते हैं। उनके बारे में हम बुराई कर देते हैं किसी के सामने। बस इंसान जब दिल बर्दाश्ता हो जाता है, बहुत ज्यादा उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो फिर इंसान क्या करता है, दूसरों के सामने उसकी बुराइयां करने लग जाता है। तो फिर क्या हुआ, हमारी तो नेकियां चलेगी उसको, तो खामखा हमने उसको अपनी नेकियां दे दी। जब हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं तो ये जरूर सोचे कि हम उसे अपनी नेकियां दे रहे हैं। तो इस चीज से भी बचने की जरूरत है, और अल्लाह ताला हमें नेक सालेह अमाल करने की भी तौफीक अता फरमाए। हर वक्त ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे बेनियाज बना दे, दुनिया से भी और दुनिया वालों से भी, और ऐसे लोगों से मुझे बेनियाज कर दे जिनकी वजह से मेरी नेकियां जाये होती हैं। ये दुआएं अक्सर मांगा करें। हम दुआएं मांगेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं उनके अंदर काफी सारा चेंज आ चुका है, जो तकरीबन हमारी स्टार्ट से जो हमारी क्लास अटेंड कर रही हैं, तो वो खुद बताएंगी अपने मुंह से कभी कि कितने हमारे अंदर चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीजें हमने छोड़ दी हैं, क्या क्या नए नए हमने इबादतों की फहरिस्त में हमने एडिशन कर लिए हैं, क्या क्या चीजें हमारे अंदर ऐड हो गई हैं, और क्या क्या बुरे काम हम छोड़ चुके हैं। ये सारी चीजें मुझे उम्मीद है कि जहाँ जितनी बहनें हमारी यहाँ पर बैठी हैं उनके अंदर ये सारे चेंजेस बेशक हो गए होंगे, क्योंकि जब हम सुनते हैं अल्लाह की बात, अल्लाह का कलाम सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी शौक होता है कि अल्लाह हम भी आमल सालेह करें, हम भी नेक बन जाएं, हम भी अल्लाह की गुड लिस्ट में आ जाएं। तो अल्लाह ताला फिर हमें भी अज्र अता करेगा, हमें भी दर्जात में इजाफा, हमारे भी दर्जात में इजाफा करेगा। तो इस तरीके से लोग भी क्या है, लोग भी कि उन ऐसे लोगों की फिर इज्जत करते हैं, लोगों के दिलों में भी उनकी इज्जत रख दी जाती है, अल्लाह ताला भी उन्हें पसंद करता है, फिर लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में बात हो रही है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाती फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, कि ऐसे लोग जो ईमान लाए, ये इनसे अलग है, डिफरेंट है। कौन से लोगों से, जो असफला साफिलीन है। असफला साफिलीन वाले लोग कैसे हैं, जिन्होंने अपने आप को दोजख के निचले हिस्से में डाल दिया, और जो नेक लोग हैं उन्होंने अपने आप को जन्नत के आला दर्जात में पहुंचा दिया। फमा युकज़्ज़िबुका बअद बिद्दीन, फिर इसके बाद जजा और सजा के बाद वे बारे में आपको कौन झुटला सकता है। यानी कि जब सारी बात हो गई, जजा और सजा की भी बात हो गई, तो फिर कौन है ऐसा जो आपको झुटलाए, यानी कि अल्लाह को झुटलाए, अल्लाह के नबी को झुटलाए, और फिर ऐसे नेक कामों को छोड़कर बुरे कामों की तरफ आ जाए। यानी कि देखिए कि इंसान जो है
इंसान अच्छे कामों की तरफ जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या है, ये सारी चीजों को झुटलाता नहीं है। जो बुरे लोग हैं वो क्या करते हैं, आखिरत को ही झुटलाते हैं, जजा और सजा को ही झुटलाते हैं। तो जब ये जजा और सजा को जब झुटलाएंगे तो उन्हें फिर ये बात का एहसास रह जाएगा उनको कि हमारा कौन सा हिसाब होने वाला है। अब अगर आप किसी 10th के बच्चे को ये कह दीजिए कि आपके एग्जाम्स इस साल नहीं होने वाले हैं, तो वो क्या पढ़ाई करेगा? बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करेगा। ठीक उसी तरह हमारा भी हाल है कि अगर हमें कोई ये बता दे कि कयामत का दिन नहीं कायम होने वाला है, तो इंसान इतनी एंजॉय करेगा लाइफ को और सारी गुनाह के काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि कोई होने वाला हिसाब तो है नहीं। अब जितनी जिंदगी है एंजॉय कर लो और बस मरने के बाद जिंदगी खत्म। लेकिन जिनको इस बात का एहसास है कि जजा और सजा है और अल्लाह ताला इनाम देने वाला है, कयामत के बाद इतनी जन्नतें हैं, इतनी प्यारी जन्नतों के इनाम है, अगर जिनको ये पता चल जाए तो वो जो छोटी सी जिंदगी जो है इसके पीछे ना भागे। वो इंसान उसके पीछे भागे जो उसकी कायम रहने वाली जिंदगी, कभी ना खत्म होने वाली जो जिंदगी है उसकी, उसके पीछे इंसान जाएगा और उसको इस बात का एहसास होगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी आखिरी जो बैंक है उसके लिए जमा कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट में अपने जमा करवा रहा हूँ ताकि मैं वहां जाकर फिर उसकी एंजॉय कर सकूं, क्योंकि ये जिंदगी तो बहुत थोड़ी है और वहां की जिंदगी कैसी है, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है। तो उसको जो झुटलाता है तो फिर वो क्या करता है, जो झुटलाएगा वो तो गुनाहों में पड़ेगा। जिसको इस बात का एहसास नहीं है, जिसको मौत का एहसास नहीं है, जिसको मौत का ख्याल ही नहीं आता, तो वो इंसान आप देखेंगे कि डंके की चोट पर गुनाह करता जाता है और उसको बिल्कुल उसका ख्याल एहसास भी नहीं रहता कि मैंने कोई गुनाह किया। ना उसको कोई उसमें वो होता है, शर्मिंदगी होती है कि मैंने कोई गुनाह किया या मुझसे कोई गुनाह सरजद हो गया, वो बिल्कुल नहीं सोचता, क्योंकि उसको मौत का ख्याल ही नहीं है। उसको आखिरी दिन का एहसास ही नहीं है, कयामत के दिन का उसको हशर और का उसको नहीं है ख्याल। उसको मीज़ान का ख़्याल नहीं है कि मीज़ान में मेरी नेकियां तोली जाएंगी तो फिर मेरा क्या बनेगा, ये भी उसको ख़्याल नहीं है। बल्कि वो बस क्या सोचता है कि जितनी भी ज़िंदगी मिली है बस उसको एंजॉय कर लो। अक्सर हम लोगों के मुंह से ये बोलते हुए सुनते हैं कि एंजॉय, ज़िंदगी मिली है तो एंजॉय कर लो, बाद में पता नहीं हमें क्या मिलेगा। हम तो जो नेक बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे, वो किस पर भरोसा किए बैठे हैं, आखिरत की जिंदगी पर, कि हमें तो वहां मिलेगा। हम तो अभी सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, हम तो अभी सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं। अब हमें एग्जाम के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो हमारी जिंदगी होगी वो हमारी असली जिंदगी है। तो हमें ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है, हर वक्त अपनी मौत को याद रखने की जरूरत है, जजा और सजा के दिन को याद रखने की जरूरत है। अपने आसपास, अपने दोस्त अहबाब में, अपने फैमिली में भी एक दूसरे को ये याद दिलाया करे कि देखो कयामत का दिन आने वाला है, जजा और सजा का दिन आने वाला है। इसमें ये बात नहीं है कि कोई इंसान बुरा ना मान ले कि कोई छोटा अगर बड़े को याद दिला दे कि देखो कयामत का दिन आने वाला है या मौत आने वाली है। कोई ये ना सोचे कि देखो ये मुझे ऐसे कह रही है, मैं इस उम्र में हूं तो मुझे इस तरीके से कह रही है। बल्कि जो भी कोई हमें नेकियों की तरफ बुलाए, हमें मौत की याद दिलाए, तो समझ लो कि वो आपका सही वेल विशर है, सही आपका चाहने वाला है, आपको चाहने वाला है, आपको जन्नतों में पहुंचाने वाला है। ये ना सोचे कि ये मुझे मौत की याद दिला रही है तो चाहती है कि मैं मर जाऊं, ये ना सोचे, ये निगेटिव थिंकिंग है। हमेशा अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखे। कोई अपनी गलतियां अपने को बताए तो उसको शुक्रिया अदा करें और अपने आसपास हर एक को ये बोल के रखें कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज मुझे बराए मेहरबानी बता दो ताकि मैं उसकी इस्लाह कर लूं, क्योंकि हर इंसान गलतियां करता है। ऐसा नहीं है कि मैं मुझसे गलती नहीं होती या आपसे गलती नहीं होती है। मैं भी यहाँ बैठी हूँ, मुझसे भी कोई गलती होती होगी। मेरी गलती किसको नजर आती है, सामने वाले को गलती नजर आती है, मुझे अपनी गलती नहीं नजर आ रही है। लेकिन हो सकता है कि मेरे आसपास वालों को मेरी गलती नजर आ रही होगी, तो उनसे ये कहें कि बेशक आप मुझे, हाँ, और गलती बताने का तरीका भी कैसा होना चाहिए, अकेले में। ये ना हो कि महफिल में, भरी महफिल में आप किसी को ये कह दें कि आप तो नमाज नहीं पढ़ते, आप तो रोजे नहीं रखते, आप तो कभी कुरान नहीं पढ़ते, हम तो देखो कैसी कुरान की क्लासों में जाते हैं, हमें तो इतना आ गया, आपको तो इतना नहीं आया। तो ऐसे किसी को जब आप गलती बताएं तो उनको शर्मिंदा ना करें, ऐसे अच्छे अंदाज में बताएं कि उनको ये भी ना पता चले कि आपने उनको गलती बताई है। तो इस तरीके से अपने आसपास के लोगों को, एक दूसरे को, अपने जो चाहने वाले हैं, और ऐसे लोगों को गलती भी ना बताएं जो एकदम गुस्से में आ जाए कि भाई इन्होंने मेरी गलती बता दी और फिर घरों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए, फिर कहेंगे कि बाजी ने कहा था कि गलती बताएं तो हमने बताया और घर में लड़ाई झगड़ा पता चला मेरी वजह से शुरू हो गया। तो ऐसे भी नहीं करना है आपको।
फिर आगे आ रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? बेशक अल्लाह ताला सब हाकिमों से बड़ा हाकिम है। अल्लाह ताला खुद यहाँ पर अपनी तारीफ कर रहा है कि जो सब बादशाहों का बादशाह है, इसकी यहाँ ही कानून पूरे राइज है, और ये सारी की सारी जो दुनिया जो है दारुल अमल है, यानी कि अमल करने की जगह है। इसलिए इन ग्रोहों का हिसाब इस दुनिया में फौरन नहीं चुका दिया जाएगा, बल्कि ये दो ग्रुप हम देख रहे हैं कि दो ग्रोह हैं दुनिया में, एक असफल साफिलीन है और एक आमनु अमिल स्वालिहात वाले लोग हैं कि जो ईमान लाए और अमल किए नहीं। तो ये दो ग्रोह हैं, तो इनके जो हिसाब होगा, इनकी जो जजा और सजा को आखिरत के लिए रोक दिया गया, आखिरत तक के लिए रोक दिया गया कि जो करना है कर लो, अच्छे काम करना है अच्छे काम करो, बुरे काम करना है बुरे काम करो। तुमको एक टाइम पीरियड का मौका दिया गया, एक मोहल्लत दे दी गई है, उतने टाइम तक तुमको जो करना है कर लो, लेकिन जब जजा और सजा का वक्त आएगा तो फिर अल्लाह ताला हर एक को बराबर का बदला देगा। कोई ये नहीं होगा कि किसी ने नेकी की थी उसकी जाया हो गई, या किसी ने गुनाह किया था उसका गुनाह उससे छुपा लिया गया। इल्ला ये कि वो इंसान अपने गुनाहों की माफी मांग ले, तौबा और इस्तगफार कर ले, तो अल्लाह ताला माफ करने पर कादिर है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला तो सब हाकिमों से हाकिम है, सब बादशाहों का बादशाह है। अल्लाह ताला सबको माफ करने पर भी कुदरत रखता है। अगर इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाए, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर तौबा व इस्तगफार कर ले और गिड़गिड़ाए सजदों में जाकर रोए अपने गुनाहों को, क्योंकि आप देखिए कि इंसान को गुनाह अपने खुद के पता होते हैं कि उसने क्या गुनाह किए, ये उसको सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं होती। हमें पता है कि हमने कितनी नमाजें छोड़ी, हमें पता है कि हमने किसको हर्ट किया, हमें पता है कि कब हमने कौन सी गलती के काम किए, तो हमें पता है कि कब हमने ऐसे गलत तरीकों से हमने कौन से काम किए। ये सारे कुछ हमें पता है, कहीं ना कहीं हमारे दिल को ये पता है कि ये सारी चीजें हमने की हैं, ऐसी चीज हमसे सरजद हुई है। तो ये चीजें सोचकर अल्लाह से जरूर माफी मांगिए। और अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि मैं सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं हूँ। यह जवाब अल्लाह ताला हमसे सवाल कर रहा है कि क्या मैं नहीं हूँ सब हाकिमों से बड़ा हाकिम, सबसे बड़ा बादशाह नहीं हूं मैं? कि बिल्कुल अल्लाह ताला, तो बिल्कुल बेशक अल्लाह ताला आप तो बादशाह हैं, सब हाकिमों के हाकिम है अल्लाह ताला आप। हम दिल में ये जरूर सोचे कि अल्लाह ताला तो बड़ा रहम दिल और बड़ा शईन कादिर है, हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला चाहे तो किसी को अजाब दे, चाहे तो माफ कर दे, चाहे तो जन्नतों में आला दर्जात अता कर दे। हमारी इतनी नेकियां नहीं है अल्लाह ताला कि हम तेरी जन्नतों तक जा सके, लेकिन अल्लाह ताला तू अगर रहम करे तो हम पर खास नेमत करे, रहमत अपनी नाजिल कर दे, तो हम जरूर तेरी जन्नतों में जा सकते हैं। अल्लाह ताला हम तुझसे गिड़गिड़ा कर ये मांगते हैं कि अल्लाह हमने पढ़ा कि तू सब हाकिमों का हाकिम है, अल्लाह ताला तू बादशाहों का बादशाह है। अल्लाह ताला तू इस बात पर कुदरत रखता है कि तू लोगों को माफ कर दे। अल्लाह ताला हमसे भी छोटी मोटे गुनाह तो हमसे भी हुए हैं, अल्लाह ताला तू उसको भी माफ फरमा दे। अल्लाह ताला तू इस बात पर कादिर है कि तू हमें माफ फरमा सकता है। अल्लाह ताला अब हमारी आंखें खुली हैं, हमें नहीं पता था, हमसे जो गुनाह सरजद हो गए, हम जब नादान थे, कमजोर थे, अल्लाह ताला अब तो हमें समझ आ रही है, अब हमें शर्मिंदगी हो रही है अल्लाह हमारे गुनाहों पर। तो अल्लाह ताला तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमसे कबूल फरमा। अल्लाह ताला हमें ऐसे नेक लोगों में शामिल कर दे जिनको अजर अजीम मिलने वाला है, और जिनका अजर कभी ना खत्म होने वाला, तू अजर उनको देने वाला है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।